बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, घरों में होंगे, खुश होंगे और इस माह रमज़ान की बरक़ात से पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होंगे। और मैं इसीलिए आप सबको एक ये बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ क्योंकि कोविड-19 भी है और हमने रोज़े भी रखने हैं, तो कोविड-19 की वजह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और क्योंकि अब हमने फास्टिंग भी करनी है तो उसमें हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है और पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आप लोग जितना डेली बेसिस पे पानी पी रहे थे उससे अपना जो इनटेक ऑफ वाटर है वो डबल कर लें। और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। दिस इज़ आवर वेरी सेकंड लेक्चर ऑफ CST मॉड्यूल 2. Your module name is self-efficacy and today we are going to study about etiquettes and behavior. Because of कि ये लेक्चर दोनों का है, BA साइकोलॉजी एंड BBA थर्ड का, आप दोनों का एक ही टॉपिक है तो इसको कंबाइन लेक्चर बनाया है। Our today's topic is behavior and attitude. Well, my dear students, attitude and behavior are woven into the fabric of daily life. Research has shown that individuals register an immediate and automatic reaction of good or bad towards every thing they encounter in less than a second, even before they are aware of having formed an attitude. Advertising, political campaigns and other persuasive media messages are all built on the you may say on the premises of that behavior follows attitude, and attitude can be influenced with the right message delivered in the right way. On this very note, I want to highlight this point as well here, that attitude it is a way of thinking, feeling, belief or opinion of approval or disapproval towards something. Means cognitive, this is a cognitive behavior. हम जो attitude है वो हमारे cognitive यानी कि brain से linked है, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम feel करते हैं. This isn't tangible. Other than behavior is an action or reaction that occurs in response to an event or internal stimuli. That can be a thought. So attitude and behavior both are, as I told you before, that both are woven into the fabric of daily life. Attitude can positively or negatively affect a person's behavior. A person may not always be aware of his or her attitude or the effect it is having on behavior. A person who have a positive attitude towards work and co-workers, they can positively influence those around them. So they both are interlinked. हम जो सोचते हैं उसका जो रिएक्शन होता है दैट इज बिहेवियर. सो अब जैसे इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि पानी के अंदर जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, वो हम असेस नहीं कर सकते, वो हम देख नहीं पा रहे होते. जो रिएक्शन है वो हमें नज़र आ रहा होता है कि अगर आपसे किसी ने गलत बात की है या आपसे ऊंचा बात की है तो आप से उसके एटीट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप किसी के भी बिहेवियर से, क्योंकि दैट बिहेवियर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और नेगेटिव. इट मीन्स दैट पर्सन इज़ नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट यू, या फिर वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहा, उसका एटीट्यूड इज़ डिफरेंट अबाउट यू, वो सही नहीं है या वो फिर नेगेटिव है. तो हाउ टू कंट्रोल दीज थिंग्स, टुडे विल स्टडी 13 थिंग्स mentally strong people don't do. What are that 13 things? Mentally strong people have healthy habits. They manage their emotions, thoughts and behavior in ways that set them up for success in life. Take a look at these 13 that mentally strong people don't do, so that you too can become mentally stronger. The number one is in front of you, that is, don't waste time feeling sorry for yourself.
Mentally strong people don't sit around feeling sorry about their circumstances or how others have treated them. Instead, they take responsibility for their role in life and understand that life isn't always easy or fair. Life is not the bed of roses. It is difficult. This world is not so easy. आप जब बाहर practical life में निकलेंगे, then you will face so many ups and downs in your life. तो अगर आप अपने ऊपर ही सॉरी फील करने लग जाएंगे तो इट मीन्स दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ. द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट नो अबाउट दिस इज दैट डोंट गिव अवे योर पावर्स. यस, आई टोल्ड यू कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, दे डोंट अलाउ अदर्स टू कंट्रोल देम एंड दे डोंट गिव समवन एल्स पावर ओवर देम. डोंट गिव योर रिमोट टू एनीवन एल्स दैट ऑपरेट मी. आप जो चैनल लगाना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं. नो, दे डोंट से थिंग्स लाइक माई बॉस मेक्स मी फील बैड बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट दे आर इन कंट्रोल ओवर देयर ओन इमोशंस एंड दे हैव अ चॉइस इन हाउ दे रिस्पॉन्ड. सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे अभी मैंने पीछे उसमें भी कहा कि जब आप अपने ऊपर सॉरी फील करना शुरू हो जाते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. इसी तरह से जब हम गिव अप कर देते हैं या फिर हम अपनी पावर्स, अपने अंदर की एनर्जी छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें एनीबडी कैन ऑपरेट अस. हमारा जो इमोशंस का कंट्रोल है या हमारी जो भी कंट्रोल्स हैं वो दूसरों के हाथ में. So that's very wrong. Number 3 is don't shy away from change. Mentally strong people don't try to avoid change. Instead, they welcome positive change and are willing to be flexible. Dear students, they understand that change is inevitable and believe in their abilities to adapt. So always bring change in your life. Always be a trendsetter instead of follower. Always accept change. Always embrace change in your life. क्योंकि चेंज हमेशा डिफ़िकल्टी लाता है हमारी ज़िंदगी में. जैसे दिस ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉट एग्जाम्पल ऑफ नाउ डेज कि हम दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट चेंज कि हम ऑनलाइन पे आ गए हैं, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते हैं, हम लोगों के पास नहीं जा सकते. तो दिस इज़ अ चेंज, लेकिन दिस इज़ अ नीड एट द सेम टाइम. अगर हम इस नीड का फ़ायदा नहीं उठाएंगे और हम सिर्फ रिपेंट करते रहेंगे या रिग्रेट्स करते रहेंगे कि या हम कर्स करते रहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे चले जाएंगे या फिर जो चल रहा है हम उनसे बहुत पीछे हो जाएंगे. तो ऑलवेज एक्सेप्ट द चेंज. हाँ, हो गया ये, दिस इज़ अ बैड टाइम. हम इस टाइम में डिमांड्स नहीं कर सकते, हम इस टाइम में लग्जरीज नहीं मांग सकते. तो इस चैलेंज को हमने फेस करना है और इस चेंज को हमने एक्सेप्ट करना है सो दैट वी ऑल कैन मूव ऑन. Yes, don't waste energy on things you can't control. You won't hear a mentally strong person complaining over lost luggage or traffic jams. Instead, they focus on what they can control in their lives. They recognize that sometimes the only thing they can control is their attitude. If we can control our attitude, then why we are complaining कि what is this going on? इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था. We must develop our positive attitude towards so many things. हम अक्सर उस चीज़ पे रोने शुरू हो जाते हैं जिस पे शायद रोने से कुछ नहीं बनता या वो हमारे हाथ में ही नहीं होता. तो जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं होती, जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते या जिस चीज़ के हमारे रोने या एनर्जी वेस्ट करने से कुछ नहीं होता, तो स्टॉप वेस्टिंग एनर्जी ऑन दैट थिंग. सो आप अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपको लगे कि इसमें एनर्जी लगाने से आप यू कैन ब्रिंग चेंज या फिर इससे कुछ अच्छा हो सकता है. सो स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन सच थिंग्स जहाँ पे उस एनर्जी को लगाने से कुछ हासिल नहीं है. स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग everyone. Yes,
There is no need to please everyone all the time. They are not the people who don't please everyone. They are not afraid to say no or speak up when necessary. They strive to be kind and fair, but can handle other people being upset if they didn't make them happy. It doesn't mean कि आप किसी के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं या आप किसी से एरोगेंट हो जाएं या रूड हो जाएं. नो, इट डजंट मीन दैट. इट मीन्स कि यू मस्ट नो हु यू आर और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है. यस, गिव टाइम टू पीपल, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होते हैं. ऐसे रिश्ते होते हैं, हाँ वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको आप हर वक्त येस बॉस येस सर करते रहेंगे, तो दैट्स नॉट फेयर इनफ विद यू. इट मीन्स यू आर रूइनिंग योर पर्सनालिटी. आप किसी को ताबेदारी समथिंग एल्स. अगर यहाँ पे कुछ बच्चे परसीव कर रहे हैं या मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ताबेदारी कुछ और होती है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे करके या अपने ओपिनियन को हमेशा साइड पे रख के यस यस करना ये सही नहीं होता. आपने हमेशा गिव योर ओपिनियन, एंड इफ़ यू डोंट फील लाइक इट्स नॉट गोइंग गुड, तो फिर आप उसको आराम से पोलाइटली इन अ वेरी गुड वे, शुगर कोटेड वे में यू कैन कन्वे टू अदर. Yes, the strong people, they don't take reckless or foolish risks, but don't mind taking calculated risks. Mentally strong people spend time on taking risks and benefits before making a big decision, and they are fully informed of potential downsides before they take action. So you must know about the बैड पर्सपेक्टिव. बैड पर्सपेक्टिव मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे. जब आप कभी भी रिस्क लेते हैं, आपको लॉस भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है. तो यही तो मज़ा है रिस्क लेने में. जब आप ऊंचाई की तरफ देखेंगे, आप गिर भी सकते हैं, लेकिन आप संभल भी सकते हैं और उसी टाइम पे. तो ये डिसाइड हमने करना है कि हमने गिरना है या गिर के संभलना है. बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अननोन फियर्स होते हैं जिनका उनको पता ही नहीं होता. शायद वो लोगों के एक्सपीरियंस से डर जाते हैं, या फिर उनका ब्रॉटअप ऐसा होता है, या फिर उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है, या फिर उनके अपने दिमाग में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं. हम कभी भी लिमिटेशंस के अंडर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते, हम क्रिएटिव नहीं हो सकते. तो अगर हमने क्रिएटिव होना है या आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो हमें बहुत सारे अननोन फियर्स को तोड़ना होगा. हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के परफॉर्म करना होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यू हैव टू परफॉर्म गुड. आई एम टॉकिंग अबाउट कि लेट्स शो योर गट्स कि आप परफॉर्म करें. जब भी हम डू और डाई सिचुएशन में होते हैं, वी ऑप्ट ऑलवेज डू, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता. इसीलिए मरने से पहले कर जाएं. ऐसी सिचुएशन आने से पहले कि जब पानी सर से गुजर जाए, उससे पहले आप ऐसे मेजर्स ले लें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई पॉइंट्स ना आए जिस पे आपको बहुत संगीन फैसले करने पड़े या फिर अपनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़े. हम ये कहते हैं कि अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मेरी ये उम्र नहीं है, अभी मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, अभी मैं ये नहीं कर सकता. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अल्लाह ताला ने एनर्जी आपको आपकी यंग लाइफ में ज़्यादा दी होती है. इसका मतलब ये है कि आप इस टाइम पे 2-2, 3-3 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. इफ़ यू आर स्टडिंग, आप उस टाइम में बिजनेस भी कर सकते हैं. उस टाइम में आप अपना टाइम बहुत अच्छे से इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आप होम ट्यूशन्स दे सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कर भी रहे होते हैं. मेरा एक स्टूडेंट था, वो रात में करीम चलाता था और सुबह में लेक्चर्स लेता था और दिन में वो ट्यूशन्स करता था. तो वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट है, और वो जिस टाइम से गुजरा है उसकी लर्निंग इज़ डिफरेंट, और उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. हम हमेशा टफ टाइम में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत क्लियर और वो बहुत क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं.
इसलिए कभी भी अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने से घबराएं नहीं, बल्कि ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंजेस so that you learn, so that you perform, so that you grow, so that you lead people. Don't dwell on the past. Mentally strong people don't waste time dwelling on the past and wishing things could be different. They acknowledge their past and can say what have learned from it. तो हमेशा what we have to do is, why I am telling you this के जो strong people होते हैं, successful persons होते हैं, they do like this so that we can learn from their experiences. A wise person is the one who learn from others' experience. तो हमें बजाय इसके कि हम अपना कोई एक्सपीरियंस करें और उसके बाद भी लर्न, इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस. डोंट कर्स योर पास्ट, या फिर अपने पास्ट को लेके बैठना नहीं चाहिए. अगर ज़िंदगी में कोई मिस्टेक हो गई है, कोई लॉस हो गया है, या कुछ ऐसा हो गया जो आप भूल नहीं पा रहे, तो स्टॉप योर सेल्फ उस पे सोचने पे, बहुत ज़्यादा बार बार रिग्रेट्स करने पे, या ऐसा नहीं होना चाहिए था. जो हो गया वो हो गया, वो बदल नहीं सकता. हाँ, योर फ्यूचर कैन चेंज आपके, लेकिन प्रेजेंट परफॉर्मेंस से. हम अगर यही कहते रहेंगे कि कल बदलेगा कल बदलेगा, तो कल उसी वक्त बदलेगा जब हम आज कोई स्टेप लेंगे, या फिर भी आज हम कुछ अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे. यस, डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर. हमेशा जो भी फेलियर होता है ना, वो हमें हमारी ज़िंदगी की सक्सेस के एक स्टेप करीब ले जाता है. हमें ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि हम हमेशा ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, हम हमेशा ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, हम हमेशा ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं. अगर हमारी ज़िंदगी में दुख ना होते तो हमें खुशी का एहसास ना होता. अगर हमारी ज़िंदगी में हार ना होती तो हमें हमारी जीत का एक प्लेजर ना होता. अगर हमारी ज़िंदगी में रात ना होती तो हमें दिन की अहमियत ना होती. अगर हमारी ज़िंदगी में दिन ना होता तो हमें एक रात की अहमियत ना होती. तो ये जो चेंज है, ये अल्लाह ताला को भी पसंद है, और अल्लाह ताला ने अपनी दुनिया को सजाने के लिए ये चेंज रखा है, ताकि हम हर चीज़ का मज़ा उठा सकें. इसी तरह से जब हम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी फेलियर को फेस करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम ये कुछ कर ही नहीं सकते, जबकि द स्टोरी इज़ टोटली ऑपोजिट. इसका मतलब ये है कि हमने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, और इस एक्सपीरियंस के बाद हमें ये पता लगा कि इसको ऐसे नहीं करना था. जब बल्ब बनाया गया तो उसके लिए 100 एक्सपीरियंसेस फेल हुए, जिसके बाद बल्ब बनाए. तो अगर वो एक्सपीरियंसेस ना किए जाते तो हमें ये पता भी ना लगता कि ये करने से, ये एक्सपेरिमेंट करने से ये होगा. तो ऑलवेज एम्ब्रेस योर सेल्फ. हमेशा टैप योर शोल्डर के यस आपने ये किया है तो दैट्स गुड, एंड गिव एनर्जी टू योर सेल्फ. हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप इंटरनली यू आर नॉट मोटिवेटेड टू डू समथिंग, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में डाउन ही फील करेंगे, या अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे. और जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है. हमेशा फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड ऑल्सो ऑन योर बैड हैबिट्स, योर वीकनेसेस, ताकि आप अपनी बैड हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी से निकालें, या अपनी वीकनेसेस पे, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स पे वर्क करके अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम करें. डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर. Always accept responsibility for your behavior and learn from your past mistakes. As a result, the successful people don't keep repeating those mistakes over and over. Instead, they move on and make better decisions in future. Yes, don't resent other people's success. हाय उसकी पोजीशन आ गई. हमें ज़्यादा दुख ये होता है कि हमारे दोस्त की पोजीशन आ गई, हम फेल हो गए या नहीं हुए, या हम पास हो गए, हमें उस चीज़ का अफसोस नहीं हो रहा होता. हमें इस चीज़ का अफसोस हो रहा होता है उसके मार्क्स इतने ज़्यादा क्यों आ गए, या उसके मार्क्स कम आने चाहिए थे.
तो ये एक ऐसी आदत है या ऐसी हैबिट है जो हमें इस चीज़ में इन्वॉल्व कर देती है कि दूसरों के साथ क्या अच्छा हो रहा है, और हम अपनी ज़िंदगी को बहुत पीछे छोड़ देते हैं और हम हमारी ज़िंदगी में ये नहीं तय कर पाते कि हमने आगे क्या अच्छा करना है। हम हमेशा अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं या हमेशा ये देखते रहते हैं कि उसके पास क्या है। मैंने अभी ये बात की कि हमने अपना कंपैरिजन अगर दूसरों से करना है, इसका मतलब ये है कि हम अपने अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं। नाशुक्री इन सेंस के व्हाट आई हैव इज समथिंग यूनिक दैट अदर पीपल डोंट हैव। जो मेरे स्किल्स हैं वो किसी और के स्किल्स नहीं हो सकते। एवरी पर्सन वेरी फ्रॉम एवरी पर्सन। अल्लाह ताला ने हर एक को आंखें दी है, हर एक को दिमाग दिया, हर एक को कान दिए, लेकिन हर आंख दूसरे नज़रिए से देखती है, हर कान अपने तरीके से सुनते हैं, हर दिमाग अपने स्किल से या अपने मुताबिक सोचता है। हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है वो हमारे ऊपर है। हमने प्रोडक्टिव वे में अपने स्किल्स को यूज़ करना है या हमने नेगेटिव वे में यूज़ करना है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी हम कुछ भी नेगेटिव वे में करेंगे या अपनी एनर्जी नेगेटिव हैबिट्स में इन्वॉल्व करेंगे या वेस्ट करेंगे, तो हम कभी भी कुछ हासिल नहीं कर रहे होंगे। बल्कि यहीं पे मैं आपको एक बात कहूँ कि कारमा के बारे में सबने सुना है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जब हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, लेकिन हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। सो द पॉइंट हियर इज दैट appreciate others, appreciate other success, सेलिब्रेट अदर सक्सेस। लोगों की खुशियों में खुश हों, जेलस ना हो, क्योंकि हम जब जेलस होते हैं तो हम बहुत अपने आप को डीवैल्यू कर देते हैं, अपनी पर्सनालिटी ख़राब कर लेते हैं। तो ऑलवेज appreciate others. Well, mentally strong people can tolerate being alone and they don't fear silence. They aren't afraid to be alone with their thoughts and they can use downtime to be productive. हमें हमेशा अपने डाउन टाइम में बहुत ज़्यादा स्किल्स, मैंने भी बताया कि जब हम अपने रफ़ और टफ़ टाइम में होते हैं वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे होते हैं, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारे मसल्स बिल्ड हो रहे होते हैं, हमारे स्किल्स बिल्ड हो रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें हमें हमारे बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में पता चल रही होती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो ऑलवेज नो योर सेल्फ, वट योर स्ट्रेंथ्स आर एंड वट योर वीकनेसेस आर, यू मस्ट नो। अगर आपको आपकी वीकनेसेस नहीं पता होंगी तो आप अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं जानते। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो यू कैन नॉट इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। देयर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम कब अपने ज़िंदगी के बारे में या अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, जब हमें ये पता होगा कि दैट इज़ द एरिया जहाँ पे वी आर वीक। और अगर हम अपने आप को यही समझते रहेंगे कि हमारे अंदर कोई वीकनेस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा लर्निंग जर्नी या हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया या रुक गया है। डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग। Mentally strong people don't feel entitled to things in life. They weren't born with a mentality that others would take care of them or that the world must give them something. Instead, they look for opportunities based on their own merits. हमारी ज़िंदगी में अगर opportunities नहीं भी हैं तो हमने अपनी ज़िंदगी में opportunities create करनी है, because there is always opportunity around us. हम सिर्फ फोकस नहीं कर पा रहे होते या फिर हमारे अंदर वो सेंस नहीं होती। समटाइम्स हम वेट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ये पैसे जोड़ के रखे हैं अपने बुरे वक्त के लिए। वाई आर यू वेटिंग फॉर योर बैड टाइम? आप अपना गुड टाइम के लिए प्लान फॉर योर गुड टाइम। हम जब ये सोचते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में जब बुरा वक्त आएगा उसके लिए मैंने पैसे रखे हैं, तो उसी के लिए ही होंगे। दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। इसलिए हमेशा आपने सक्सेसफुल लोगों से या फिर जिनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे हमेशा ये सुना होगा कि हमेशा आप अपना बड़ा गोल सेट करें, क्योंकि जब हम सोचते हैं हम उसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, या जो हम ख्वाब सोच लेते हैं, हम गोल
अपना टारगेट कर लेते हैं, जो हमारा विजन होता है वो हमें उसकी तरफ ले जाना शुरू हो जाता है। इमीडिएट रिजल्ट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत कम होता है कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया और अब हम ये कहें कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ जाएं और अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं। अच्छे रिजल्ट्स आने का मतलब ये है कि हमारी स्किल्स डेवलप हो जाएं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी हमारी स्किल्स डेवलप हो जाएं। हमने पैसा लगाया है, वो पैसा प्रॉफिट के साथ वापस आ जाए और हमें ह्यूमन रिसोर्स या और डिफरेंट रिसोर्सेज भी यूज़ ना करना पड़े। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा रॉन्ग होती हैं। हम समटाइम्स बल्कि मोस्टली हम प्रैक्टिकल होके नहीं सोचते, जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं या हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी वन। जस्ट स्ट्रगल, परफॉर्म एंड गिव योर बेस्ट। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। जब हम कोई भी खिलाड़ी जब किसी भी गेम में ग्राउंड में जाता है और वो अच्छा खेलता है, चाहे वो हारता है या जीतता है, उस वक्त लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि इसने फाइट किया है। अगर आप किसी ग्राउंड में जा रहे हैं किसी भी खेल के लिए, किसी भी गेम के लिए, लेकिन आपने पहले से ही सोच लिया कि हो ही नहीं सकता और आपने गिव अप कर दिया या क्विट कर दिया, इसका मतलब यह है कि आपने फाइट ही नहीं किया, तो नोबडी विल सपोर्ट यू और आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो एक सॉन्ग आया था, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। आई गेस उस वक्त क्रिकेटर्स के लिए ये आया था। तो उस टाइम पे क्रिकेटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ग्राउंड्स में, इसीलिए ये बात हुई थी कि तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रगल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइट ग्राउंड पे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनर सेटिस्फैक्शन एज वेल। ये जो 13 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये 13 पॉइंट्स हमारी ज़िंदगी में अगर हम ये फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी को हम एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। हम अपने ओपिनियंस चेंज कर सकते हैं लोगों के बारे में, अपने बारे में, ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम रिएक्शन भी वैसे दे रहे होते हैं। जो हम सोचते हैं दैट इज़ आवर एटीट्यूड, जो हम रिएक्ट कर रहे होते हैं दैट इज़ आवर बिहेवियर। तो ये इंटरलिंक्ड है दोनों चीज़ें। हम थिंक ऑन इट और ट्राई टू बी ऑन सच पैटर्न्स जिस पे वो लोग गुजर चुके हैं या उन लोगों ने अपना टाइम निकालने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, जो दुनिया के जाने माने और सक्सेसफुल लोग हैं। ऑन दिस वेरी नोट, अपने घरों में रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अपने और दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी अच्छा और बेहतरीन हो। थैंक यू सो वेरी मच। अगर इस लेक्चर में आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप डिस्कशन रूम में यू कैन डिस्कस विद मी। हैव अ वेरी गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।